A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome everyone to another session of VOTP. So for all our new people who are here today for our session, VOTP stands for Voice of the People. And VOTP was started after October the 7th with the main objective of raising awareness among people regarding the importance of their voice. And as a part of this, we want each and every member of our community and the Muslims to know how important it is to demand accountability of themselves as well as of others in the community, the leaders, and everyone else. So, as a part of this, we are doing a lot of courses under the umbrella of Find Your Truth, which is to empower the individual self. And we also have the public awareness sessions on VOTP, and these are with topics which are to increase the awareness among the parents and the ummah regarding the current political issues and the current need from us, the current demand from us. And one of the important areas is, the need for leadership. And why are the people who are on the right not leading the world? And when we come to this important question, it trickles back to we are not raised as leaders, when we are young. And that is the topic for today, why our kids are not leading the world. And this is a call for all the parents. And we have with us Brother Saad Humayun, who is a gym instructor, who is very much involved in work on the ground in the area of justice for Gaza in Pakistan. And we want to hear from him as to the advice for the parents, how to build the kids who will, inshallah, lead the world in the righteous way. So welcome, Brother Saad. We are all yours. We want to learn. We as parents want to understand what we could do to get our kids as the future leaders, inshallah. Bismillah. Bismillah. Walaikum Salam, Ms. Farana, and the pleasure is mine. Let me introduce myself. I'm Saad Humayun, just as Ma'am Farana mentioned me. Basically, from the beginning of my life, I'm a little bit of observer. I observe things differently. I used to see things in a different way. So, with the passage of time and with the help of Allah Subhanahu wa Taala, now Allah has given me some skills and experience, so I think it is beneficial for other to benefit from what I've learned and what I see and how I see things. So, and as you can see, in the profession I'm in right now, like I am HR manager, where we have to observe person's personality, and in the field of fitness trainer, we have to evaluate how we are going to deal with the specific client. So it's all about human nature. It's all about how human behave, how human thinks, and how we have to deal with the specific nature of that person. So Alhamdulillah, it's all by the grace of Allah Subhanahu wa Taala. And I think if we have something that the best thing to know that what qualities you have, I am giving a tip to everyone. So how do you analyze that what qualities do you have? It's a simple trick what you can apply on yourself. Is try to see what people are asking from you, which type of help they are asking from you. Let's suppose I am a mathematics teacher, and lots of students are coming to me, sir, please can you tell me how to solve this problem, like how to solve this algebraic equation. So it means that I am a mathematician expert. And if I am a chemistry teacher and people are coming towards me like, sir, how to solve this equation, chemical equation, so it's a sign that this is the skill set Allah Subhanahu wa Taala has given you. So see the things in a different way now, inshallah. Observe things like how people are approaching you and for what reason they are approaching you. Inshallah, this will give you the benefit of identifying yourself, identifying your skill set. So inshallah, you can grow more. Coming back to the topic, why our kids are not leading the world. बेसिकली अगर इसको हवाल को हम थोड़ा सा मैं इस्लामिक एंगल से करूं कि जैसे कि हर एक मुसलमान इंतजार कर रहा है इमाम मेहदी का,
हर शख्स इंतजार कर रहा है इमाम मेहदी का। क्या कहीं से सीरत से या कुरान से ये हमें इंस्ट्रक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलती है कि इमाम मेहदी के आने तक हमने कोई काम नहीं करना और हमने सिर्फ घर में बैठ जाना है? तो ऐसा नहीं है। हमें इमाम मेहदी की फौज के लिए काम करना है, हमें उनके लिए ग्राउंड बनाना है, और ये ग्राउंड बनेगा तभी इमाम मेहदी आएंगे। यही चीज अगर पाकिस्तान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं और इस पे मुस्लिम्स की मैं बात करूं, तो मुस्लिम्स वेट करते हैं हमेशा लीडर का, यार कोई और खड़ा हो, कोई और मसले में आगे बढ़े और वो जाके चीजों को डील करे तो हम उसके फॉलोअर्स बनेंगे। और हमने बहुत सारे जगहों को विजिट किया है फलस्तीन के इश्यूज रिलेटेड। तो हर एवरी पर्सन वाज सेइंग दिस टू अस लाइक, you lead and inshallah we will follow. Nobody wants to be the first man behind the wall, कि कोई भी शख्स पहला बंदा बनना नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है कि हम फॉलो करें। तो इस पे मैंने थोड़ी सी जो आप लोग की बरकत से मैम फरीदा के रेफरेंस से मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, कुछ थोड़ी चीजें थी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ इस पे शेयर करता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि सिस्टर शाजिया, प्लीज कैन यू मूव टूवर्ड्स स्लाइड्स नंबर 2? Thank you. And inshallah, I will tell you yes, please. So please, at that time, please switch to slides, next slide. Okay. Okay. पहले वंस मुस्लिम लेड द वर्ल्ड, मतलब ये आप सबको पता है कि पहले जो है मुसलमान हर चीज के ऊपर जो है ना, मुसलमानों हर चीज में पहल करते थे। अच्छा, उसमें मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा कि मेरा टॉपिक इस वक्त इस चीज के ऊपर बात करना नहीं है। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज पांचवें खलीफा थे, और जो है उन्होंने क्या किया था, इंसाफ को जो है ना, इंसाफ का वो उन्होंने एक सिस्टम दोबारा से लॉन्च किया था। और जो है उन्होंने क्या किया था, इस्लामिक गवर्नेंस लेकर आए थे। और उसमें क्या किया था कि जो लग्जरियस लाइफस्टाइल लोग गुजारते थे उसको हमने जो है ना क्या किया था कि और कि मतलब एक लोग, कुछ लोग अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे बहुत लग्जरी, कुछ लोग बहुत नहीं, तो उसे बैलेंस लेके किया था। हारून और रशीद, ठीक है। और इनके बारे में आता है कि इन्होंने बैतुल हिकमा बनाया था। और बैतुल हिकमा को अगर आपने समझना है तो आप इस तरह का समय एक रिसर्च सेंटर कह लें। वो एक रिसर्च सेंटर था, वहां पे जो है वो सिर्फ इस्लामिकली चीजों को नहीं देखते थे, वो साइंस के ऊपर भी रिसर्च करते थे, मेडिसिन पे, फिलोसफी पे, वो इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करते थे। फिर हारून रशीद के बाद मामून और रशीद उनके बेटे थे, ठीक है। उन्होंने भी इसी चीज के ऊपर काम किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी चीज के साथ साथ जो है उन्होंने ट्रांसलेशन की ग्रीक के अंदर, पर्शियन के अंदर, और उन सब जबानों की ट्रांसलेशन की अरबिक के अंदर। ये अक्सर लोग, हम लोग कहते हैं कि यार कि हमारी लैंग्वेज उर्दू है और हिंदी ना सीखो, और इंग्लिश जो है वो नॉन मुस्लिम्स की लैंग्वेज है। तो बेसिकली सारी लैंग्वेजेस आने से फायदा होता है, और एक इंसान जितनी लैंग्वेजेस सीख सकता है तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी चीजों को ऑब्जर्व करने की, चीजों को एक्सप्लेन करने की और बढ़ती चली जाती है। तो आप जितनी ज्यादा जबानें सीखेंगे उतना आपका दिमाग तेज काम करेगा। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इसके बारे में तकरीबन सबको पता है कि वो किस तरह से मशहूर थे। एक जंगजू सिपाही भी थे वो, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही रहमदिल शख्स भी थे। उनका एक बहुत बड़ा जो एक किस्सा जो कि बहुत मशहूर हुआ वो ये, एक क्रूसेडर्स की लड़ाई में जो उनका दुश्मन था वो बीमार पड़ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी बीमारी की हालत में वहां पे जो अपने गुलामों को भिजवाया कि भाई क्या आप जाके बोले कि उनकी जो भी अद्वियात हैं और जो भी चीजें वो हमारी तरफ से हैं ताकि वो बेहतर हो जाएं, फिर हम लड़ेंगे। तो ये उनकी जो है ना, वो एक जंगजू भी थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर रहम का मादा बहुत ज्यादा था, वो रहम भी करते थे, मर्सी उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो वो इस चीज के, तो वो उन और उन्होंने ही जो है जो हमारा जेरूसलम था उसे जो है लास्ट वो चीज़ों को वो कराया था। उसके बाद हमारे मुसलमानों के पास वापस आया था। और फिर उसके बाद अब हमारे सामने है फ़लस्तीन की हालत क्या है। अब अगर हम बात करें कि अब पहले तो टाइम पे हम सब ने देखा कि भाई कि मुसलमान जो है वो बहुत लीड कर रहे थे चीज़ों को, बट अब क्या हो रहा है कि अब हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा बैंकिंग सिस्टम अगर हम देखें, कि हमें पता है कि सूद जो है इस्लाम में अलाउ ही नहीं है किसी तरह से, बट हम मजबूर है, हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है। और उसी की वजह से अब उलमाओं को बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ी है। और अब जाके वो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम आया है कि वो सूद से 100% पाक नहीं है, बट कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उसकी है। तो इसमें बहुत सारे उलमाओं की एफर्ट्स हैं और बहुत सारे कुर्बानियां हैं, वक्त है, बट पॉइंट ये है कि ये हमारे एंड से लूज कैसे हुआ कि हम जो है हम दूसरों के ऊपर रिलाय करना शुरू किया बैंकिंग सिस्टम के। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें
तो क्या हमारा कोई इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम नहीं था? अब हम देखें कि हमारे पास जो नॉन मुस्लिम्स के एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब जो लास्ट इसमें मेरी लाइन है वो है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं आ रहे एज अ लीडर और एज अ एंटरप्रेन्योर भी कह लें और एज अ रिसर्चर भी कह लें, वो चीज़ कहाँ से मिस हो गई? तो उसके लिए सिस्टर शाजिया, यस प्लीज। ठीक है, उसमें मेन चीज है, एक सेकेंड। ओके। अब हमें जो, आप देखें कि मुसलमानों को ये वीक कहाँ है, मुसलमान स्ट्रांग थे, लीड कर रहे थे, ये वीक हुए कहाँ से, ये वीक हुए कहाँ से, इस इनको शॉर्ट के मैं शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बयान करूंगा और डिफाइन करूंगा ताकि हमें पता चले कि मुसलमानों को ब्रेक कैसे किया गया, उनकी पावर को कैसे तोड़ा गया। एक सिंपल सी चीज, फिरका वारियत, आपस में डिवाइड एंड रूल खेला गया, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत जो है वो टूटी। उसके बाद जो है इस्लामिक प्रिंसिपल जो थे उनको जो है चेंज किया गया, हर बयान के अमीरों के लिए अलग कानून हो गया और जो है एक गरीब के लिए अलग अलग कानून, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो उस चीज के ऊपर लाते गए। फिर उसके बाद क्या किया गया कि रिसर्च करना बंद करवा दी गई, बस जो हमने बोल दिया ना बस आपने उसे फॉलो करना है, आपने कोई ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना। मतलब कैपिंग कर दी गई कि आपने कुछ सोच, फ्री थिंकर आपने बनना ही नहीं है, आपको बस जो दे देगा आपने एग्जैक्ट जो है आपने वही करना है। और हम उसके असरात आज भी देखते हैं कि अगर आज भी हमारा बच्चा अगर हमारे सामने कोई बात करे तो हम बोलते बेटा तुम्हें नहीं पता, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना वो सही है। समटाइम्स हमारा वो बच्चा सही होता है बट स्टिल हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। हम बोलते हैं बेटा जो मैंने बोल दिया बस वो ठीक है। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे के अंदर अब वो एक दफा रेजिस्ट करेगा, अबू मेरे पास मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, दो दफा तीन दफा, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो फिर उसकी वो स्किल खत्म होती चली जाएगी, वो उसका कॉन्फिडेंस लूज होता चलेगा और फिर वो बन जाएगा एक ब्लाइंड फॉलोअर। वो अपने बाप को ब्लाइंडली फॉलो करेगा, उसका बाप चाहे सही करे या गलत करे। तभी हमने देखा है कि एक बाप जो एक गलत एक्टिविटी में होता है तो उसका बच्चा जब बड़ा होता है वो भी उसी एक्टिविटी को, गलत एक्टिविटी को करते हुए प्राउड फील कर रहा था कि यार मैं भी एक अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो बाप को उसने ब्लाइंड फॉलोइंग की होती है। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो एक मुसलमान का कॉन्सेप्ट था, मुसलमान के उसमें कभी भी ये नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान से मुसलमानों का है, इंडिया मुसलमानों का नहीं है, इंडिया के मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि अभी पाकिस्तान इंडिया की वॉर में हुआ तो हम जो है इंडिया से वॉर करने के लिए हम जो है फौरन बहुत बहादुर बन जाते हैं, बट जब फलस्तीन की बारी आती है तो हम कमजोर बन जाते हैं और हम डरते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पास वो हथियार नहीं है और वो नहीं है और ये नहीं है। लेकिन इंडिया से जैसी लड़ाई होती तो हम बोलते हैं कि हम जो है हमारे पास ये फाइटर जेट्स और हमने इतने जहाज गिरा दिए। तो पता चल रहा है एक डिफरेंस हम फील कर रहे हैं कि यार कि पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई हो रही है तो हमारा स्टांस डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान को इसराइल के अमेरिका के अगेंस्ट अगर कोई बात करनी पड़ती है वहां पे हमारा स्टांस डिफरेंट है। तो ये चीज आई कहाँ से, वीक आइडेंटिटी क्या है, अगर हम इसको समझे कि एक शख्स की आइडेंटिटी क्या है और हमारी वीक आइडेंटिटी की एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने सेशन स्टार्ट किया थोड़ी सी इंग्लिश में, ठीक है, और फिर अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। सो पॉइंट ये कि शायद मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स गलत भी बोलूंगा, ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सो आप लोग के माइंड में ऑटोमेटिकली एक मेरी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यार ये इतना स्किलफुल बंदा नहीं है, ठीक है। कंपेरेटिवली एक अंग्रेज है पाकिस्तान में और वो उल्टी सीधी उर्दू उर्दू बोले, हम जो है ना उसमें भी फख्र महसूस करते हैं, ये एक गुलामाना सोच है। ठीक है, हमारा माइंड एक एक गुलाम की तरह है कि हमारे आका जो है हमारी लैंग्वेज अगर वो टूटी फूटी भी बोल रहे हैं तो हम जो है ना बड़ा उसमें फख्र फील करते हैं। और अगर हम उनकी लैंग्वेज में एक मिस्टेक भी करें ना तो हम में हमारे अंदर शर्म भी आती है और हम एक दूसरे का मजाक भी, यार तुम्हें तो इंग्लिश ही नहीं आती। हालांकि देखा जाए ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का जरिया और कुछ भी नहीं है। तो हमारी आइडेंटिटी इतनी वीक हो चुकी है कि हम लोग जो है दूसरी चीजों में जो है ना वो होते हैं। अब इसमें होता किस तरह से, होना ही चाहिए था कि मुसलमान की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आपने देखा होगा अक्सर दीनदार लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, मतलब दाढ़ी रखने से पहले बंदा डर रहा होता है। कोई फीमेल अगर वो कवर कर रही होती है तो वो थोड़ा सा शर्माती है, वो हिचकिचाती है, वो इधर उधर भागती है, मतलब लोगों को फेस नहीं करती है, वो डरती है। हालांकि वो होना ही चाहिए था कि, हालांकि कुरान की आयत है सूरह फुसिलत की, कि जो शख्स, उससे बेहतर कौन शख्स होगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए
और अच्छे काम करे, और वो जो है शख्स वो मुसलमानों में से है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये हमें प्राउड फील होना चाहिए था कि अगर हम दीन का काम कर रहे होते, हम रिलीजियस चीजों पर चल रहे होते, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। जो शख्स शलवार कमीज पहनना शुरू कर देते हैं तो लोग उसे तंज भी करते हैं, और वो बेचारा थोड़ा सा हिचकिचा के जो है ना पीछे हट जाता है। कंपैरेटिवली अगर वही शख्स कोट पैंट पहने और जो है वो, हालांकि ड्रेसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, हमारा माइंडसेट बताने के लिए कर रहा हूँ। वही शख्स कोट पैंट पहने तो वो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता है कि यार मैं आज कुछ डिफरेंट लग रहा हूँ। ये हुआ कैसे? ये जब हम अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने मिशन को भूल जाएंगे जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया था, तो फिर अल्लाह ताला हमें भूल जाएगा, अल्लाह ताला हमें हमारी चीजों में छोड़ देगा। सूरह अल हशर की आयत है 59, जो सूरह चल है उसकी 19वीं आयत है, एंड डू नॉट बी लाइक दोस हु फॉरगॉट अल्लाह सो ही मेड देम फॉरगेट देमसेल्फ। हमारे साथ यही हुआ है कि हम अल्लाह को भूल गए। अल्लाह को भूलने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको मिसाल दी एक बुरखे वाली खातून की, एक दाढ़ी रखने वाले शलवार कमीज वाले मर्द की, तो यानी कि वो नमाजें तो पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके साथ ये मामला क्यों हो रहा है कि उन्हें शर्म क्यों आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस हाई क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी बेसिकली वजह यह है कि दीन हमारा सिर्फ नमाज रोजे की हद तक नहीं है। जैसे कि अगर चार चार पार्ट है इस्लाम के, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो नमाज है, इबादत है, ठीक है। बाकी जो तीन पार्ट है वो आपकी इबादत है। और अगर आप थोड़ा सा एक एक चीज को आप जो है थोड़ा सा डीपली स्टडी करें, तो इन मतलब इस्लाम के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका पर्पज यही है कि वो उससे दूसरों को फायदा पहुंचता है। ये इस्लाम की हर इबादत का पर्पस ये है कि उससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, ठीक है। हम लोग अल्लाह से दूर होकर हम अल्लाह को भूल के अल्लाह ने हमें, हम आपस अपने में अंदर ही अल्लाह ने हमें गुम कर दिया, ठीक है। तो हमारे ये वजह बनी कि हमने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अब हमें क्या करना है? अब जब आप आइडेंटिटी आपने लूज कर दी, तो फिर आपने तो किसी ना किसी को फॉलो करना है। अब एक बच्चा है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि मैं हाफिज कुरान बनूं या मैं आलिम बनूं, शर्म आती, तो फिर वो क्या करेगा? वो किसी ना किसी को जो है वो फॉलो करेगा। तो वो फॉलो किससे करेगा? जो वो देख रहा है चीजें हो किस तरह से रही। अब जहां जो उसकी सराउंडिंग में जिस तरह की बातें चल रही होंगी, लेट सपोज एसीसीए करना है, सीए करना है, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस फील करेगा और वो उसी तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ये आइडेंटिटी लूज होती किस तरह है? इसमें एक जो चीज है वो, बाप का बच्चे से ताल्लुक दूर होता जा रहा है। इसको अगर हम देखें कि अक्सर खवातीन की शिकायत यही है कि भाई ये जो है बच्चों को टाइम ही नहीं देते। ये एक शिकायत है, अक्सर खवातीन ये शिकायत करते कि भाई बाप जो है वो बच्चों को टाइम नहीं देता। और बाप से बोला जाए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कि यार मुझे कमाना है, मुझे प्रोवाइड करनी है चीजें, आपको पता है फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी खराब होती जा रही है। तो वो एक गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मसले जो है ना बढ़ रहे हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, हर जगह बात हो रही है ग्रेड्स की। पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं अगर उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा हो। अब अच्छे स्कूल की आप थोड़ी सी, आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, उस स्कूल में मैं बच्चे ही वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो टॉप टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि आपने घर में इन पे तवज्जो देनी है। हम तो सिर्फ 8 घंटे 6 घंटे पढ़ाएंगे, बाकी टाइम आपने देना है। वो पेरेंट्स तवज्जो दे रहे हैं, आपने टॉप टैलेंटेड बच्चे को ले रहे हैं, सही, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं। और उसके बाद जब बच्चा टॉप करे तो नाम हो रहा है स्कूल का। हालांकि इसमें एफर्ट्स हैं उस बच्चे के, उसमें एफर्ट्स हैं उसके, मेन उसके पेरेंट्स के। स्कूल ने क्या किया? सिर्फ एक बच्चा ही वो सिलेक्ट किया जिसके पास स्किल सेट थे, तो और वो नाम सिर्फ स्कूल का और आता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन सिस्टम और क्या ग्रेड्स में चल रहा है कि एक बच्चा बचपन में फेल हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं? एम्बेरसमेंट फील कराते हैं, तुम तो फेल हो गए। जबकि हम देखें हालांकि नॉन मुस्लिम्स की तरफ जाए तो वो लोग स्कूल्स में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं करते, वो लोग बोलते हैं पास हो जाए, आपने एफर्ट्स करनी है बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ बच्चे को इतना, एक छोटा सा बच्चा 5 क्लास का बच्चा, उसका आप कोर्स देखें, इतना भारी बैग लेके वो जा रहा होता है। और जो है उसके बाद जो है वो उसके ये एग्जाम्स वो एग्जाम्स, बच्चे की मेंटल, हालांकि हम अगर इसको कुरान से देखें, इस्लाम से देखें, तो इस्लाम में भी एक स्पेसिफिक एज के बाद आपने जो है नमाज का हुक्म देना, उससे पहले आपने नहीं देना, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज पे होता है माइंड। उसमें अगर आप उसे बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो चीज डेवलप नहीं हो पाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसी थी कि दो सेम स्पीशीज, यानी कि सेम टाइप के एनिमल्स को पिंजरों में रखा गया,
और एक पिंजरे के सामने जो एक एक जो जानवर था उसको रोजाना जो है ना बहुत प्यार से खिलाया जाता था, सारी चीजें की जाती थी। और जो दूसरा जानवर था उसके सामने एक ऐसा जानवर खड़ा किया हुआ था जो उसे खाने के लिए तैयार था, लेकिन गैप था, वो पिंजरे के अंदर था, और उसे भी खाना सेम प्रोवाइड किया। कुछ महीनों के बाद जब दोनों को सामने सैंपल लाया गया, तो वो जानवर जिसको मोहब्बत से खिलाया जाता था वो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, अच्छी हो गई थी, वो बहुत ही पता लग रहा था कि वो अलग डिफरेंट जानवर है। और वो सेम दूसरा एनिमल जो था उसके साथ क्या हुआ कि वो कमजोर हो गया, वो सुकड़ गया, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट हो गया। यही चीज हमारे बच्चों के साथ हो रही है कि जो बच्चा टॉप करता है, हर कोई खानदान में भी उसे जो है ना अपलिफ्ट कर रहा होता है, उसी की बातें, उसी के चर्चे, फिर उसकी दावतें और ये सारी। लेकिन जो बच्चा फेल हो रहा होता है, हर कोई उसे जो है ना वो और धुतकार रहा होता है, उसे बुरा भला बोला होता है। और उससे भी वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को धमकी क्या देते हैं कि अगर तुम्हें अब नहीं पढ़ाना तो तुम्हें मदरसे में डाल दूंगा। मतलब मदरसा आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन था, आपको मदरसा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हम लास्ट ऑप्शन, और वो भी सजा के तौर पे, कि जो है ना तुमने जो है ना नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें मदरसे में डाल दूंगा। हम ऑटोमेटिकली सोच डेवलप करें इस्लाम से दूर करने वाली। उसके बाद मटेरियलिज्म, ये चीज डेवलप करें। एक बच्चा जब ग्रेड्स के ऊपर फोकस करेगा, उसका मकसद ही ग्रेड है, तो उस ग्रेड के बाद उसका मकसद है जैसे ही मैं स्कूल से निकलूँ अच्छे कॉलेज में हूँ, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड वो काम कर रहा है। फिर जैसे ही कॉलेज से निकलो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलो तो अगर मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो यानी कि मैंने काम किया ही नहीं। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लोगों को कितना फायदा पहुंचा रहा हूँ और कितना फायदा नहीं पहुंचा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फोकस कर रहा है कि नहीं यार बस मुझे मेरा टारगेट अचीव हो। तो मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, और मटेरियलिज्म की सबसे मेन जड़ है कि अगर अक्सर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो प्रोफेशनलिज्म एक वर्ड है, मैं समझता हूँ कि ये भी थोड़ा सा इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। कि अक्सर ऑफिस में एक बंदा जिसके अगर लेट सपोज फादर की डेथ हो गई है, 2 दिन के बाद ऑफिस बोलता है कि सर आपको पता है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है और हमें पता है कि ये कैसा मौका है, सबने गुजरना होता है, बट प्लीज आप ये काम आपने नहीं किया तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। मतलब प्रोफेशनलिज्म के नाम पे आपने सारे इमोशंस, आपने एम्पैथी, आपने सामने वाले की फीलिंग्स को बिल्कुल साइड पर रख दिया और आपसे प्रोफेशनलिज्म। ये मटेरियलिज्म से ही चीजें निकल रही हैं कि आप जब गोल मतलब चीजें से मकसद हो गया कि मैं सेल्फिश हो जाऊं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे जो है ये सारी चीजें करनी है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा, फिर आप उस शख्स से, उस बच्चे से ये तवक्को नहीं रख सकते कि जब आप बूढ़े होंगे तो वो आपकी खिदमत करेगा अपनी ऑफिस की छुट्टी करके। क्योंकि उसका मेन गोल है पैसे कमाना, उसका मेन गोल है, आपने रखा कि आगे तरक्की करना, तो वो तरक्की उसके ऊपर फोकस करेगा। आपके लिए वो कोई कोई मेड रख देगा जो आपकी चीजें देख रहा होगा, लेकिन वो खुद से उन चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। यस प्लीज। Sorry. सिस्टर शाजिए प्लीज। नेक्स्ट। I'm doing it. Well, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब फादर और मदर का रोल, दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी मैं मिसाल थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आप लोग को समझने में आसानी होगी फादर और मदर के रोल को। वैसे तो आपको पता है बच्चा छोटी एज में होता है, नमाज का हुक्म भी नहीं होता, उसे मारना पीटना डांटना ये सारी चीजें नहीं होती, तो उसे मोहब्बत चाहिए होती है। क्योंकि एक फूल या एक कोपल कह लें, या एक फसल अभी स्टार्ट हो रही होगी ना, तो उसको केयर ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, एक यानी कि पौधा, एक दरख्त जब वो पौधा निकलता है इनिशियल स्टेजेस पे, तो उसे केयर ज्यादा चाहिए होती है। आपने जानवरों से भी बचाना है, कोई पाँव रख के ना चला जाए, कोई कुचल के ना चले जाए, तेज हवा से बचाना है। लेकिन जब वो पौधा बड़ा होता है तो फिर आप वो दरख्त में कन्वर्ट होता है, तो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से सरवाइव करता है। हवा के अंदर भी कोई से कुचल के भी नहीं जा सकता, कोई इतनी आसानी से तोड़ भी नहीं सकता। तो मदर का काम यही है कि जो एक पौधा स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में निकलता है, मदर मदर का काम होता है इमोशनली उसे सपोर्ट करे, मोहब्बत दे, उसके ऊपर रहम खाए, उसके साथ उसे बचाए, अगर कहीं पे जरूरत है तो वहां पे उसके बीच में आ जाए माँ, तो माँ ये काम कर रही होती है। अब इस रोल को समझने के लिए थोड़ी सी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्कूल की। या आप समझ ले, लेट सपोज आपने कोई यूनिवर्सिटी से थ्योरी पढ़ी, ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आप आए तो आपने जो है उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखी, तो क्या ये थ्योरी काम कर सकती है? नहीं करेगी। अगर आपने, अक्सर हम लोग, क्योंकि जब मैं क्योंकि एचआर की फील्ड में हूं, तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, बड़े टॉप ग्रेड्स लिए हुए होते हैं,
लेकिन जब वो काम नहीं कर पाते तो हम उन्हें हायर नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें काम नहीं आता। थ्योरी बहुत अच्छी थी लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो पता भी नहीं था कैसे करना है। तो सेम इसी तरह कि अब फादर का काम क्या है, यानी कि जो प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो बचपन से ही मैकेनिक की दुकान पे चले आता है, तो वो गाड़ी ठीक करना सीख जाता है, वो गाड़ी ठीक कर लेता है। लेकिन जब वहां से शिफ्ट होगी, गाड़ियों से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर गाड़ियां शिफ्ट होगी, तो वहां पे आके वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास वो थ्योरी लैग कर रही है। उसके बाद प्रैक्टिकल काम था लेकिन वो वहीं तक लिमिटेड था, अब जो थ्योरी लैग कर रही है। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क जब मिक्स होगा, तो फिर जो है फिर वो जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा कि वो आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट ला के देगा। यानी कि एक मदर और फादर दोनों को अगर बैलेंस रोल होगा, तो रिजल्ट में एक अच्छा बच्चा जो कि लीडर बन सकता है, वो आगे ग्रो करेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक भी अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा मैम फरीदा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं पानी लेकर आऊं। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ, हाँ। ओके। सो दोनों को अपना फंक्शन, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तभी जाके एक अच्छा एक लीडर बच्चा पैदा होगा और एक लीडर बच्चा ग्रो करेगा। अब इसमें इशू क्या आता है? अक्सर खवातीन शिकायत करती है कि भाई ये बच्चा जो है अपने वालिद के पास जाता ही नहीं है, ये तो हर वक्त मेरे साथ ही चिपका रहता है। अक्सर खवातीन ये शिकायत कर रही है, और उसकी वजह से वो ओवर बर्डन हो रही होती है, वो स्ट्रेस में आ रही होती है, फिर वो उसी बच्चे को मार रही होती है, उसी बच्चे पे चीख रही होती है। ये आता किस तरह से? अब मैं आपको थोड़ा सा इस पार्ट को आप लोग समझे। एक फादर का रोल है क्या उस बच्चे की नजर में? सुने, इसने ये काम नहीं किया, इसे जरा डाके डांटे, ठीक है। फोन कर रहे हैं ऑफिस में, ये देखें इसने ये काम कर दिया, इसे जरा डांटे। अब बच्चे की नजर में वो फादर हीरो नहीं है, तो बच्चे की नजर में वो एक आ, अजीब सा वर्ड है, जल्लाद है, ठीक है, जो कि उसे पनिश करने के लिए आ रहा है। उसका रोल यही है उसकी नजर में। वो बच्चा उस बाप के साथ बॉन्ड कैसे क्रिएट कर सकता है जिसको वो डरता है, जिसे पनिश के लिए हर वक्त यूज किया जाता है? तो ये अब इसको क्रिएट किसने किया? क्योंकि फादर का काम है चीजों को प्रोवाइड करना है, वो जॉब पे जाता है, उसे 10 चीजें देखनी है, आगे इश्यूज पे डील करना होता है। बट घर पे कौन है? वो फीमेल है। वो फीमेल क्या कर रही है? और कंपटीशन भी हमारे यहाँ इस तरह के होते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मामा पसंद है या पापा पसंद है? ये अभी से बच्चों के जहनों में चीजें डेवलप कर रहे होते हैं। तो उसके नतीजे में क्या निकलता है? फादर से वो कनेक्शन लूज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका नुकसान किस बात है? कि बच्चा जो है माँ के साथ ज्यादा अटैच हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि माँ जो है ओवरबर्डन होती है। इसका नुकसान ये होता है कि माँ स्ट्रेस में आके फिर चीखती है, चिल्लाती है, और बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। यानी कि उसका एंड रिजल्ट क्या है कि वो जो थ्योरी पढ़नी थी बच्चे ने, वो थ्योरी भी सही से नहीं पढ़ सका, और जो प्रैक्टिकल उसने एक्सपीरियंस हासिल करना था बाप से, वो एक्सपीरियंस भी हासिल नहीं कर सका। तो ये मसला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट यानी कि मेन रोल इसमें एक मदर का है, कि मदर एक बाप को हीरो बना के पेश करेगी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस बाप की चीजों को फॉलो करेगा, भले ही वो बाप ज्यादा टाइम ना भी दे। लेकिन अगर उस माँ ने उस बाप को एक पनिशर बना के पेश किया, तो बच्चे ने कुछ भी नहीं करना, वो बाप से छुपेगा, और जब उसके पास पावर आएगी, या फिर वो बाप को जवाब देगा, या फिर वो खुद से साइड पे हो जाएगा, अलग होकर रहना शुरू कर देगा। ये मसला हम लोग खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। और माँ के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कि जो स्ट्रेस आ रहा है वो हर वक्त उसके साथ चिपका रहता है, तो वो भी मसला उसके साथ रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें बाप को हीरो बना के पेश करना है। फिर बाप से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ वो अपना रोल अब प्ले करे। लेकिन अगर हमने बाप को हीरो नहीं बनाया, पनिशर बनाया, तो फिर बाप अपना कनेक्शन जितना भी बिल्ड करने की कोशिश करेगा वो नहीं होगा।
नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। इस्लाम में जो माँ है, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और बोलते हैं कि किसका हक मुझ पे सबसे ज्यादा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। वो फिर पूछते हैं इसके बाद किसका है। तो वो फिर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ का। फिर जो है फिर पूछते हैं कि इसके बाद किसका है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ का। चौथी बार जब वो पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं तुम्हारे बाप का। अब एक तो इस हदीस के बारे में एक सोच तो यही है कि के दर्जे के वो जो है ना ऊपर रखा गया, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें एक चीज और ये मिल रही है कि बाप जो है ना, वो बाप को वो इमोशनल कभी भी सपोर्ट उस तरह से नहीं चाहिए होती। यानी कि एक बच्चा अगर माँ को डेली फोन ना करे तो माँ परेशान होती है। लेकिन अगर बाप को फोन नहीं करेगा, बाप परेशान नहीं होगा। बाप देख रहा है कि मेरा बेटा अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो खुश रहेगा। भले वो उससे बात करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ को जरूरत है, क्योंकि माँ जो है, माँ से बच्चा इमोशन सीखता भी। और माँ एक, यानी कि समझ ले कि एक पूरा एक पावर बॉक्स है इमोशंस का, जिससे बच्चे ने इमोशन सीखने हैं। और बाप क्या है कि वो उस इमोशन इमोशन को बंदा किस तरह से कंट्रोल करता है, ये बाप सिखाता है। लेकिन इमोशन सारे जो डेवलप होते हैं, प्यार, रहम, केयर करना, ये माँ सिखाती है। ये माँ बच्चे के अंदर जो है ना फीड करती है। लेकिन जब ये स्किल सेट बच्चे के अंदर आ गए, अब बाप बताएगा उसे किस जगह पे आपने प्यार करना है, कितना करना है, किस जगह पे गुस्सा करना है, कितना करना है, किस जगह पे किसी की केयर करनी है, कितनी करनी है। तो दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर लोग, जो बच्चे हैं वो आप देखें बहादुर नहीं बन रहे। वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं आ रही। वो केयरिंग है, वो सब चीज है, लेकिन उनके पास ये चीजें नहीं आ रही, बहादुरी नहीं आ रही और डिसीजन मेकिंग पावर। क्यों? क्योंकि उनका फादर से कनेक्शन नहीं है। क्योंकि एक बच्चा डिसीजन मेकिंग घर के अंदर कितनी करेगा, सब्जी कौन सी लानी है, इसमें तो बच्चे से नहीं पूछा जाता। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, चीजें आती हैं, अब क्या लेना है, ये चीज यहाँ पे इतने की मिल रही है और यहाँ पे इतने की मिल रही है। अब वो बच्चे को डिसाइड करना है कि यार मैं कहाँ से लूँ। डिसीजन मेकिंग बच्चा क्या होता है, सीखता है। प्रैक्टिकल लाइफ से जो है ना वो सीख रहा होता है। तो ये बाप सिखा रहा होता है। ये बाप का काम होता है कि वो बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाए, उससे मशवरे लें, बच्चे से पूछें छोटी सी एज में कि जो है ना कि अब बताओ क्या करना है। आई थिंक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके बारे में आता है कि आप देखें एक बादशाह की महफिल लगी हुई है और एक मसला कितना सीवियर है कि एक माँ जो है, दो माँ हैं जो एक बच्चे को क्लेम कर रही हैं कि ये दोनों माएँ बोल रही हैं कि ये हमारा बच्चा है। और वो एक मसला खड़ा हुआ है, सोचे सिवेरिटी देखे मसले की कि दो माँ क्लेम कर रही हैं कि ये हमारा बच्चा है और इन दोनों के बीच में फैसला करना है कि कैसे भाई डिसाइड करे किसका बच्चा है। तो अल्लाह के मशवरा, आई थिंक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने, वो छोटे थे, उन्होंने मशवरा दिया कि काम करें कि इस बच्चे को ना बीच में से आधा आधा कर दें और दोनों को आधा आधा दे दें ताकि मसला ही खत्म हो जाए। अब जैसी ये बात एक्चुअल माँ ने सुनी तो उसने फौरन क्या बोला, नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप ये बच्चा उसको दे दें। और वही फैसला होगा कि ये इसकी असल माँ है। अब आप देखें कि पहले तो आप इस चीज को देखें, ये एक उनकी सलाहियतों का तो बिल्कुल एक, हाँ, एक प्रेजेंटेशन है। बट पॉइंट ये, क्या हमारे किसी इस तरह के फैसले में हमारा कोई बच्चा इस तरह से फीडबैक दे सकता है, कोई सजेशन दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता। मतलब सवाल ही पैदा नहीं तो हम तो फौरन चुप, तुम चुप रहो, बड़े बात कर रहे ना, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। हमारे यहाँ पे हम डरा के रखते हैं बच्चों को। मिसाल के तौर पर बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ मैं आपको। आ, देखो तुमने ऐसा नहीं किया ना तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। और नमाज में अक्सर बच्चे सामने से गुजर जाए, डांटते हैं बच्चों को कि तुम नमाज के सामने से क्यों गुजर गए, पता नहीं है नमाज पढ़ रहे हैं। तो बच्चा बचपन से, मस्जिद में बच्चा चला जाए तो उसे डांटते हैं, नहीं तुम साइड पे खड़े हो, तुम जो है पीछे चले जाओ, तुम नहीं आना है अंदर। यही बच्चे को हम बचपन में दूर कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं। और जब हम, ये बच्चा बड़ा होता है और ये नमाज के लिए नहीं आ रहा, तब बोल रहे पता नहीं क्या हो गया, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता। भाई आपने डराया अल्लाह से, आपने डराया उस इस्लाम से, जिसका नतीजा निकल रहा है वो दूर है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद में बात हुई थी, तो बच्चे जो है वो खेल रहे थे और उसके ऊपर एक अंकल ने काफी डांटा। तो मैंने इमाम साहब के पास गया, मैंने बोला देखें अगर बच्चों को आप इस तरह से डांट रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये वाली हदीस की इम्प्लीमेंटेशन आप कहाँ करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो जमात, फर्ज फर्ज नमाज की जमात हो रही है और उनके जो वो हसन हुसैन है वो उनकी पिड्डी में आगे बैठ के सहाबा हटा रहे हैं
और वो उनका हाथ रोक रहे, नहीं तुम नहीं हटाओ, मैं फर्ज नमाज की बात कर रहा हूँ, मैं नफिल की बात नहीं कर रहा जो बंदा इंडिविजुअल पढ़ रहा। तो इस वाले वाक्य को आप कहाँ कोट करेंगे, आप इसे कहाँ पे पुट करेंगे कि बच्चों को। तो माशाल्लाह से वो भी अच्छे, तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने फिर यही किया कि बच्चों को खेलना अलाउ कर दिया मस्जिद में। और बच्चे फिर ऐसी अटैचमेंट उनकी इमाम साहब से हुई कि बच्चा माशाल्लाह से वहां पे कराटे क्लासेस हो रही है। पॉइंट क्या है कि हम लोग खुद, बच्चा एक एम्प्टी पेपर है, हम उस पर जो लिखेंगे वो करेगा। और लिखते किस तरह से, बोल के नहीं, बच्चे को आप बोल के नहीं करते, आपके एक्शंस बताएंगे। बच्चे को नमाज में मसला मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बाप को नमाज पढ़ते बच्चे ऐसे यूं जमाइया लेते हुए नमाज पढ़ रहा है वो, और वो यूं अजीब सी शक्ल बना के नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चा नहीं एक्साइटेड होगा कभी भी नमाज में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखिए, हम लोग क्योंकि हम तो करप्ट एक पैटर्न से गुजर के आ चुके हैं ना, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की खातिर सेक्रीफाइस करें और हम एक्टिव होकर नमाज पढ़ो और हमें फील कराएं बच्चों को कि यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो बच्चे के अंदर वो चीज खुद ब खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और वो नमाज को उसी तरह से लेगा जैसे वो लेता है। क्योंकि वो मोबाइल आप देखें, हर बच्चा आजकल का अजीब सा मसला क्या, मतलब मोबाइल कोई ऐसी चीज है कि बच्चा अट्रैक्ट क्यों हो रहा है मोबाइल में। मसला ये कि वो देख रहा है, माँ को भी देख रहा है, बाप को भी देख रहा है, और हमारे जितने और घर के अंदर फर्द है, हर शख्स का एक अपना मोबाइल है। तो वो देख रहे कोई ऐसी चीज है, उससे हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कंटिन्यूस टाइम से कोई इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो वो तभी बच्चा मोबाइल की तरफ जाता है। तो हमें रोल मॉडल होने की जरूरत है। नेक्स्ट पे चलें प्लीज। अब कुरान सिखाना मायनों से, ये सबसे अहम चीज है। ये अगर हमने बच्चे की बचपन में आदत कुरान खत्म करने की डाल दी ना हमने, तो हमने बहुत नुकसान कर दिया कि बेटा तुमने कुरान खत्म करना है, तुमने कुरान खत्म करना है। कुरान खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुरान को समझना इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। हर शख्स कोशिश करता है साल में 4 कुरान खत्म करूं, अच्छी बात है आप करें, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप उसके मायनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मायनों पे फोकस नहीं कर, आप सिर्फ खत्म पे खत्म किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश सिर्फ रीड अच्छी कर लेता हूँ, और मेरे टीचर बोलता है कि ये बच्चा जो है ना रीडिंग बड़ी अच्छी करता है, लेकिन जब वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ऐसे स्टूडेंट को कोई टीचर आगे प्रेजेंट करेगा कि यार ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, वो कभी भी नहीं करेगा, बोले रट्टू तोता है, ये सिर्फ चीजों को जो है ना वो बस रटता और कुछ भी नहीं करता। यही हम लोग कर रहे हैं। अब मेरी बच्ची वो मदरसे में जा रही है, तो वो कुछ चीजें वो हदीसों के बारे में जो है ना वो ऐसे वो आके जैसे एक तरीका एक स्पेसिफिक उसमें सिखाते हैं तर्ज में, वो सीख के आ रही है। मैंने बोला आपको इसका मतलब पता है? मेरा मतलब नहीं पता, मतलब पूछ के आना कि आपको मतलब पता चले कि आप क्या पढ़ रही हो, आपको पता तो चले कि मतलब क्या है। तो वो चीज हम बच्चे की डेवलप करेंगे कि हमें जो है ना, सॉरी, ओके, ठीक है, तो वो चीज हमें डेवलप करनी। हाँ, हमें बचपन से बच्चे की आदत डालनी, कुरान खत्म नहीं करना, कुरान समझना है। आई थिंक मैं म्यूट हो रहा हूँ बार बार, तो देख लीजिएगा प्लीज। That's okay. तो ओके, बाप का और बच्चों का बॉन्ड कैसे, देखिए बच्चे के साथ अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं रोजाना कुरान की तफसीर बच्चे को पढ़ाऊं और मेरा बच्चा खामोशी से टोपी पहन के बैठ के खामोशी से पढ़े, तो मैं गलती कर रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बच्चे को आप बच्चे के तरीके से कराएंगे, बच्चे को जो चीज भी सिखाते हैं उसके स्टाइल में आपको आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी थोड़ी सी रिसर्च करके निकालनी पड़ेगी। आप वो स्टोरीज बच्चे को स्टोरी के स्टाइल में सुनाएंगे तो बच्चा जो है ना वो उस चीज को अडॉप्ट करेगा। उसके साथ आप बच्चों के साथ खेलें। बहुत सारे गेम्स है हम लोग नहीं खेलते, मतलब बहुत स्पेसिफिक छोटे छोटे गेम है, मतलब मिसाल मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि आप स्टैंड अप सिट डाउन एक गेम है, आप बच्चों के साथ खेले, रिलेशन बिल्ड। अब एक बाप का गैप बढ़ चुका है, अब उसे जोड़ना कैसे है, वो जुड़ेगा इस तरह से कि आपने गेम्स खेलने हैं, ताकि बच्चे जो आपको पनिशर समझ रहे थे वो पनिशर से हटके वो आपको फ्रेंड जोन के अंदर लेकर आए, ताकि फिर वो आपसे चीजें पूछेंगे भी सीखेंगे भी। ये आपने करना है, ये आपने बच्चों के साथ लाजमन गेम्स खेलने हैं। फीमेल का काम ये है कि बाप को हीरो बना के प्रेजेंट करे कि देखो बेटा तुम्हारे अब्बू ये अच्छे हैं, ये काम करते हैं, ये करते हैं, सारी चीजें बताएं, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बाप का काम क्या कि वो गेम्स खेले आके बच्चे के साथ, रोजाना एक गेम खेले, अच्छा बेटा ये गेम खेलना है, अच्छा चलो ये खेलना है। उससे क्या होगा कि बच्चा खुद ब खुद जो है ना बाप से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो एक डिस्कनेक्शन आ गया था वो दोबारा कनेक्शन रिबिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकली मैं आपको चीजें बता रहा हूँ
जब आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करेंगे ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम जैसे ही कम होगा ना, तो देखिए चंद चीजों के लिए आप रेडी रहें। वो बच्चा है, वो कोई आप एक आप ये नहीं कह सकते वो प्रोफेशनल कोई पर्सन नहीं है कि वो खामोशी से जाके ऐसे बैठेगा बुक रीड करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। वो खेलेगा, वो चीजें तोड़ेगा, वो चीजें इधर से उधर निकालेगा, वो खाना खाते हुए खाना गिराएगा। ये सारी चीजें अगर हम उसे नहीं करने देंगे, अगर हमने हर चीज पे उसे टोक लगाना स्टार्ट कर दी, ये वो पॉइंट है जहां से एक बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम होता है। ये वो मेन पॉइंट है कि आप उसे खाना नहीं खाने दे रहे, नहीं तुम गिरा दोगे। अब आप उसे समझा रहे हो, आप कोई काम खुद नहीं कर सकते। कोई चीज उठा के फेंक दी, तुमने क्यों कर दिया। आप हर चीज में इसके ऊपर एक रिसर्च थी, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी शख्स को बार बार करेक्ट करते हैं तो उस शख्स का कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाता है। वो बिल्कुल जीरो पे आता है, फिर एक वक्त आता है वो चीजों से भागता है। वो चीजों को जो है वो कोशिश करता है, ट्रैक करता है, यार अच्छा ठीक है मैं इस चीज से बचूं, इस चीज से बचूं। तो हमें क्या करना है कि बच्चों की स्क्रीन टाइम कम करानी है, लेकिन हम इस चीज के लिए रेडी रहें कि बच्चा चीजें उठा के फेंकेगा, वो चीजें तोड़ेगा भी, ये उसका लर्निंग प्रोसेस है। एक बात याद रखें, ये उसका लर्निंग प्रोसेस है। अगर आपने ये स्टॉप कर दिया तो आपने उसकी वो जो माइंड की ग्रोथ थी वो ग्रोथ स्टॉप कर दी। आप उसे करने दें, गलती चोट लगने दें, लिटरली चोट लगने दें। और इसको अगर हम देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखें कि अल्लाह ताला ने उनकी बेस्ट तरबियत की है, उससे बेस्ट तरबियत किसी की नहीं हो सकती। उनको माँ नहीं मिली, उनकी तरबियत के लिए माई हलीमा के पास भेजा जाता था, वो एक टफ एनवायरनमेंट था, ठीक है, वहां पे भेजा जाता था। उसके बाद बहुत सारी चीजों, बकरियां चराते, मतलब सारी चीजें उन्होंने की है। और हमारा बच्चा एसी में रहता है, नहीं, हमारे बच्चे को असल में एसी के बगैर ना वो आदत नहीं है, सोता नहीं है। ठीक है, चोट लगे, अरे नहीं नहीं बाइंदे तुम खेलने मत जाना, तुम्हें चोट लग गई। तो ये सारी चीजें है कि हमें क्या करना है कि बच्चों को गलती करने देनी है। आपने बस क्या करना है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर उसे वो गलती करने देनी है। आपने बस ये नहीं कि इतनी चोट लग जाए कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, आपने कंट्रोल रखना है। थोड़ा सा एक बार गिरेगा ना, अच्छा अब दोबारा तुम करो, तुम्हें खुद जितनी बार आप 10 दफा मना कर ली एक चीज करने के लिए, उससे बेहतर है वो एक दफा उस जगह पे जाकर चोट खा लेगा ना, फिर नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। ठीक है। एक बहुत कॉमेडी सी एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चों को बताते रहे स्त्री गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, नहीं सुनेगा वो। लेकिन एक बार उसने हाथ लगा लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम जब स्त्री लेके आएंगे ना तो वो यूं डर जाता है, नहीं नहीं नहीं, गर्म है, गम है, गम है, इस तरह करके बोलते हैं। बच्चे सीखते हैं इस तरह से, आपके बोलने से नहीं सीखते, वो खुद गलती करके सीखते हैं। ठीक है। स्टोरीज हमें खुद पता होनी चाहिए। देखिए हम अक्सर चीजें करते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, यार ये सवाल आएगा, अब ये प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, मैंने इसकी रिसर्च की, उस रिसर्च के बाद मैं उस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ एक सेशन के लिए। लेकिन क्या मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ? क्या मैं उनके लिए स्टोरीज निकाल रहा हूँ इस तरह से? क्या मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट करूँ बच्चे को कि बच्चा, और अब तो चीजें इतनी आसान है, चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, वो आपको बताएगा कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, वो आपको बताएगा कौन सी स्टोरी निकाले, इस स्टोरी से क्या कॉन्टेक्स्ट लेकर आने, सब चीजें वो बताएगा। अब बहुत आसान है चीजें। ठीक है, उसके नुकसान अलग है चैट जीपीटी के, क्या आप आगे जाके आप दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, वो एक अलग केस है। ठीक है। बट ये कि आपने वो चीज तो करनी है जो आपको भी हेल्प कर सके, टाइम सेव कर सके, वो आप करें, आप निकालें। बट पॉइंट है कि मैं और आप इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम इस चीज को नहीं कर, हम चाहते हैं सारे मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएं। तो जो है ना, हम उसके बाद जो है ना चीजों को, हमें कुछ करना ना पड़े, चीजें खुद ब खुद सॉल्व होती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर चीज को इंडिविजुअली जो है ना देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप बच्चे को कुरान जब पढ़ाएंगे मायनों के साथ, अब आप उसे, हम क्या करते हैं, एक चीज होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी मेरे जहन से निकल रही है, कि यानी कि इंसान का जहन हो जाता है कि उसका काम ही होता है कि मुझे बस चीज कंप्लीट करनी है। लेट्स सपोज उसने कहा मूवी देखी, तो मूवी में क्या मैसेज उसे ये नहीं समझना, उसने बस शुरू करना है और एंड करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है। यही चीज हमारी एजुकेशन में, बेटा क्लास स्टार्ट हुई आपने एंड करनी है, कोचिंग स्टार्ट हुई एंड कर, हर चीज स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड की मीनिंग्स भूल गया वो बच्चा। ठीक है, वो चीज हमें डेवलप करनी है कि हम कैसे सिखा रहे हैं कि बेटा कुरान खत्म कितने किए तुमने रमजान में। तो हम चीज गलत सिखा रहे हैं कि खत्म करना मकसद नहीं है, कितना सीखा तुमने, क्या सीखा तुमने, कहाँ अप्लाई किया तुमने, ये सवाल होने चाहिए। हम सवाल ही गलत करें कितने कुरान खत्म किए, तो हम खुद उसे वो चीज सिखा रहे हैं, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड, ये चीज नहीं करनी है। उसके बाद जब बच्चा बाप के साथ कनेक्ट होगा तो वो उसके अंदर बहादुरी आएगी, उसके अंदर बर्दाश्त आएगी, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर आएगी। ठीक है, वो इमोशनल कंट्रोल सीखेगा, किस जगह पे किस इमोशन को क्या करना है। क्योंकि बाप क्या करता है,
माँ में रहम होता है तो वो चीजों को, लेकिन अगर कोई चीज माँ क्या करेगी, बच्चे से काम नहीं हो रहा तो फौरन जल्दी से करके दे देगी। बाप क्या करेगा, वेट करेगा, बताएगा अच्छा अब तुम ये काम करो, ऐसे करो, अच्छा अब तुम ये करो। वो सिखाता है कि तुम खुद से सीखो ताकि तुम चीजों को आगे जाके खुद से लेके चल सको। तो ये हमें करना है। ये सारी वो चीजें जो बचपन के बच्चों के अंदर बिल्ट इन होगी तो आगे जाके जो है ना वो एक लीडर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। देखिए लीडरशिप स्टार्ट होगी आपने चंद चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें, कि हमने स्टार्टिंग में माँ का रोल क्या है, कि माँ ने बाप को हीरो बना के प्रेजेंट करना है। बाप का रोल क्या है, बाप ने बच्चों के साथ गेम्स खेल के बॉन्ड को दोबारा से स्ट्रांग करना है। फिर उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करें दोनों मिलके कि यार अब हमें बच्चों के अंदर ये वाली चीज डेवलप करनी है, इसके लिए कौन सा कुरान का किस्सा जो है बच्चों के सामने पेश करें और किस स्टाइल में करें, कौन सा पार्ट मैं प्ले करूंगा कौन सा पार्ट तुम प्ले करोगी। इस तरह से करके दोनों बैठ के इसके ऊपर डिसाइड करें। ये चीज कर ली। अब होगा क्या जब बच्चे की आपने ये सारी चीजें की, बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा और वो आगे जाके उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। अब बच्चे को हम मारते कहाँ पर है, यानी कि लीडरशिप स्किल्स कहाँ पे मारते हैं। मेरे साथ ये होता था कि मैं सहाबाओं के किस्से देखे, और जब वो देखे कि भाई कि वो खुद प्यास से मर रहे दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, खुद खाना नहीं खा रहे दूसरों को खाना खिला रहे हैं, अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे दूसरों को जब ये किस्से पढ़े तो एक चीज डेवलप हो गई। अब डेवलप हुई, अब किसी का भी मसला हो रहा है, वहां पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोका जा रहा है कि तुम क्यों जा रहे हो दूसरों के मसले में, तुम क्यों किसी के मसले में पड़ते हो, तुम बेटा सिर्फ अपना सीधा जाओ सीधा आओ, तुम दूसरों के उस पर कोई किसी चीज में मामला में दखल ना दो। ये हम लोग बच्चे को खुद रोक रहे हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज जो होनी चाहिए, एक्टिविज्म जो है वो हम रोक रहे हैं कि बेटा नहीं नहीं तुम नहीं करो, ऐसा ना करो। तो ये चीज क्या थी, पहले क्या होता था, मुझे याद है मेरे मामू थे तो वो खुद भी ऐसे ही थे। वो दूसरों के मसलों में जाते थे, बहुत सारे लोगों के मसले सॉल्व किए, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कि मतलब लाइफ भी उनकी डेंजर में आई है। और बट उन्होंने एक बात समझाई थी, उनका लास्ट टाइम मेरे साथ गुजरा तो उन्होंने बोला बेटा एक बात याद रखना, किसी की जान अगर जा रही हो ना तो फिर तुम अपनी जान की परवाह नहीं करना। लेकिन ये कौन बोलता है आजकल, ये बात कौन समझाता है, कौन बोलता है अपने बच्चे को कि बेटा अगर किसी की जान जा रही हो ना तो तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं करनी, तुमने फिर उसकी हेल्प करनी है, वरना तुमने अच्छा काम नहीं किया। हम लोग बिल्कुल इसके रिवर्स बोलते हैं, बेटा अगर किसी को मसले में देखो ना फौरन वहां से भाग जाना। तो ये चीज हम लीडर को खुद ही खत्म कर रहे हैं। एक वो जो एक नेचर है बंदे की, हेल्पिंग नेचर, एक्टिविज्म, वो हम खुद खत्म कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, हमें इस चीज को स्टॉप करना। जब आपने तरबियत दे दी ना तो अब आपने उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी देना है। अगर वो कुछ काम करके आए तो थोड़ा सा उसे वॉच रखना है, बट उसे समझाना है बेटा तुम्हें कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे नहीं लड़ना, कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे स्टैंड नहीं लेना, और वो कुरान से साबित करे। अब आपने कुरान को हर चीज में रख दिया आगे, अब आप कोई भी बात करेंगे तो बच्चे को इसलिए नहीं कि बेटा मैं बोल रहा हूं तुम नहीं करो, नहीं बेटा कुरान ये कह रहा है, देखो तुम्हें कुरान। तो बच्चे की डेफिनेशन यानी कि कोई भी डायरेक्शन लेने का जरिया कुरान बन जाएगा। तो बच्चा कभी भी आपसे अगर आर्ग्यूमेंट करेगा, आपके पास कुरान होगा तो आप उसे समझा सकेंगे, लेकिन अगर आपके पास कुरान नहीं होगा तो वो आपकी बात नहीं समझेगा। तो ये चीज अगर हम लोग करना स्टार्ट कर दें, बच्चों को कुरान बताएं, बाप माँ जो है हीरो बनाए बाप को, और बाप जो है पे गेम्स खेले और गेम्स के बाद फिर वो सारी चीजें कर, उसके बाद बच्चे को आगे इम्प्लीमेंट करने दें। तो इससे जो है ना बच्चा आगे ग्रो करेगा और वो लीडर बनेगा। इसमें आपने सबसे पहली चीज उसे, मेरी बेटी मुझसे बोल रही है कि मुझे जो है स्कूल में जाना, मैं स्कूल क्यों जाओगी, बोल रही है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर क्यों बनूंगी, आप सवाल करें, उसे बच्चे को सोचने पे मजबूर करें कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, आपने करना है तो क्यों करना है। फिर आप उसे एंड में कनेक्ट करें, फिर अगर वो बोले कि हाँ मुझे लोगों की मदद करनी, अब आप उसे रिलेट करें इस्लाम से कि हाँ आपको ये काम ऐसे करना है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाए, यानी कि बेटा कौन सा मसला सबसे बड़ा है उस मसले को तुमने सॉल्व करना है। ज्यादा बड़ी जॉब तुम्हें नहीं लेनी, पैसा मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बड़ा इशू है ये तुमने सॉल्व करना है। पहले यही होता था। पहले के लोग, जो अगर हम बात करें थॉमस एडिसन की, आई थिंक थॉमस एडिसन ही है ना बल्ब वाला, आई थिंक प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसने कितने फेलियर्स किए, उसे उसके अगेंस्ट में कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। अभी भी हम देखें जितने साइंटिस्ट हैं वो हाई पे रोल के ऊपर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, पैशन वाले लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमें बच्चे का पैशन लोगों की हेल्प करना बनाना है, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है।
हमें ऐसा काम, कुछ काम करना है, ऐसी माइंडसेट डेवलप करना है कि लोगों की हेल्प करना मकसद हो जाए। अब इसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर लें। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और मतलब इसके मल्टीपल एंगल्स हैं, मल्टीपल स्टेजेस हैं। उस स्टेजेस के ऊपर क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसमें बस एक टिप मैं आपको दूंगा, कि बल्कि टिप नहीं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा बच्चा जो है लीडर बन सकता है। अक्सर हम जिद्दी बच्चों को ना बहुत बुरा कह रहे होते हैं कि यार ये जिद्दी बच्चा है, बहुत जिद करता है, जो मना कर दो फिर भी करता है। लेकिन मैं आपको ना, ये वो बच्चा होता है जिसकी आइडेंटिटी उसके लिए क्लियर है कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे करना है, दैट्स इट। पूरी दुनिया कुछ भी बोले, तो हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों को सिर्फ चैनलाइज करना है सही डायरेक्शन में। और वो सही डायरेक्शन में एक बार चल गए तो इंशाल्लाह वो फिर किसी दुनिया की फिक्र नहीं करेंगे। उन्हें जो सही काम करना होगा वो उसके ऊपर काम करते रहेंगे। और जो बच्चा आपकी फौरन जी जी, यस यस मामा ये करना शुरू कर दे, तो समझ लें आप कामयाब हो गए। उसका जो ब्रेन डेवलप होना था उसे खत्म करने में आप कामयाब हो गए। आपने ऐसे बच्चे नहीं बनाना, आपने ऐसे बच्चे बनाना है जो आपसे क्वेश्चन करे रिस्पेक्टेबल वे में। तो ये सारी चीजें, और हर चीज रिवर्स हो सकती है दुआ से, आपकी कोशिश से हर चीज रिवर्स हो सकती है। ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू, मेरे ख्याल में मैम लास्ट उस पे चलते हैं, मेरे ख्याल क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं। जी, Jazakallah khairan, Brother Saad, for a very, practical information and tips as to how to, raise kids, inshallah. तो inshallah आगे चल के ना leaders बनेंगे inshallah. I think we have already a couple of questions. तो Sister Shama ने पूछा है कि what are the strategies that we can adopt for teenage boys to cultivate a healthy and productive relationship with the father? तो इसका आप पहले जवाब दे दें. टीनेज, यानी कि अगर टीनेज बच्चे, तो उनका कनेक्शन बाप के साथ कैसे जो है ना वो किया जाए। देखिए, टीनेज लाइफ जो होती है ना, उस पे अमूमन बच्चा जो होता है तो वो उस पर ट्रस्ट करना सबसे, जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज है, कि वो यही बच्चा बाहर जाके दोस्तों के साथ अच्छी चीजें शेयर करता है, बात करता है, टाइम स्पेंड करता है, उसे मजा आता है। लेकिन जैसे ही वो घर पे आता है तो वो देखते हैं बॉसी एटीट्यूड है, बेटा तुम्हें करना है तो करना है। और इस एज में वो इस चीज से भागता है कि मुझे ऑर्डर ना दो। ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज क्या करना है कि बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना है। उसकी बात सुननी है, जज नहीं करना उसे, उसकी बात सुननी है, समझनी है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना है। मैंने ऐसा किया था, तुम ऐसा करो, जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा किया था, देखो कि तुम्हें से हेल्प मिलती है, ठीक है। नहीं हेल्प मिलती, तुम अपना खुद पाथ एक्सप्लोर करो और फिर मुझे शेयर करो कि तुमने क्या सीखा या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट अगर आप अपने बच्चे पे नहीं करेंगे ना, तो कहते हैं ना कि बच्चे को आप बोले कि तो बहुत जिद्दी बच्चा है, मिसाल के तौर पे, तो बच्चा जिद्दी बन जाएगा। आपने बोले यार ये तो बिल्कुल ही डफर है, और आप उसे कंटिन्यूअसली कहते रहें, तो वो बच्चा डफर हो जाएगा। इसी तरह आप अपने अगर बेटे पे ट्रस्ट करेंगे और करते रहेंगे, मुझे बोलेंगे कि बेटा मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कभी भी गलत काम नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जहन इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है कि हाँ यार मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जिससे मेरा फादर का ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप हो। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज कहते हैं कि फादर अब हीरो हीरो होना चाहिए। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बाप है, देखिए हम बहुत सारी चीजों में लैग करते हैं, नॉलेज के एतबार से भी, हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी लैग करती है। मतलब सुपरमैन का अगर पेट निकला हुआ हो, ठीक है, तो क्या वो सुपरमैन को सुपरमैन एक्सेप्ट करेगा? आप मुझे बताएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, जो जितनी भी लाइफ थी, कभी ऐसा हुआ कि उनका पेट आया हो? कभी भी नहीं। वो फिट थे हमेशा, सारे सहाबी फिट हुआ करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि एक अजीब सा लाइफस्टाइल हम सबने फॉलो कर लिया। फादर कहीं से भी, देखिए कुछ चीजें अगर, ये तो अब इसके ऊपर रिसर्च है कि जैसे शेर है ना, शेर क्यों एक अच्छा, और एक वो देख के उसकी तरफ जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं, यार शेर अच्छा होता है। मतलब आज तक कितने लोग हैं जिसने बोला एलिगेटर बड़ा जबरदस्त होता है? कितने लोगों ने बोला है? नहीं। वो सिमिट्रीज होती हैं कुछ, कि फेस की जो फॉर्मेशन इस तरह से हुई भी होती है कि लोग उस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरह आपकी बॉडी की भी सिमेट्री है। आप जब फिट एक फादर होगा, तो बच्चा मेल तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि यार मेरा बाप जो है ना फिट है, वो हर चीज में मेरे साथ कॉम्पीट करता है। मतलब वो खेल में मुझसे आगे है, वो हर चीज में मुझसे आगे है। लेट्स सपोज आर्म रेसलिंग का कंपटीशन कर रहा है बच्चा उस लड़के से, तो बच्चे वो इन्वॉल्व होगा। अच्छा चलो देखते, पुश करो तुम मुझसे, कितनी ताकत है तुम में।
सही, तो ये चीज लड़का क्योंकि अब उसको स्ट्रेंथ उसकी डेवलप हो रही है, उसने टेस्ट करनी है। अब वो देख रहे हैं मेरा बाप तो मुझसे जो है ना, अक्सर होता भी है कि आप जिसके मैदान में आपने जिसको हरा दिया ना, तो वो आपका जो है ना ताबे हो जाता है। इसी तरह अगर बाप ने उस बेटे को हरा दिया उस मैदान में, तो बेटा ताबे हो जाएगा। वो मतलब साइकोलॉजिकली उसको फॉलो करना स्टार्ट होगा, यार मेरा बाप मास्टर से यार अभी तक फिट है, मुझे आर्म रेसलिंग में हरा दिया, मैं उसे पुश नहीं कर सका, मतलब ये सारी चीजें फिट है और उसकी नॉलेज भी है, मुझे समझता भी है, मुझ पर भरोसा भी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाने को बोलूँ तो मुझे फौरन से रोक देता, नहीं तो मैं मुझे करने देता है, तो वो कनेक्शन बिल्ड होगा। आपने अगर ऑर्डर फॉलो करवाने, ठीक है, आपने अगर चाहते कि मैं जो बोलूं, जैसे अक्सर लोग करते हैं मेरी ख्वाहिश है मेरा बेटा हिफ्स करे, भाई ये आपकी ख्वाहिश है, आप खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें अपनी ख्वाहिश, अपने बच्चे के ऊपर इंप्लीमेंट ना करें। वो बच्चे पिट रहे हैं मदरसे में जा जाके, बस मेरी ख्वाहिश है मेरा बेटा हिफ्स करे। भाई आप अपनी ख्वाहिश क्यों उसके ऊपर मुसल्लत कर रहे हो? उसे अगर करना है तो वो खुद करे, नहीं करना है ना करे, कोई बात नहीं, आप अपनी ख्वाहिश उसके मुसल्लत ना करें। ये हम चीजें बचपन से बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपने बच्चे पे ट्रस्ट करना है, आपने उसके साथ दो सिंपल, हम टीनेज लाइफ में हम क्या करते थे कि अगर मैं कोई गलत काम करूं तो मुझे कोई बॉस ना बने मेरे ऊपर आके कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो। वो समझाए, बताए, थोड़ा सा गाइड कर दे, फिर उसके ऊपर छोड़ दे, अच्छा तुम डिसाइड करो, क्योंकि वो सीख रहा है हर चीज, क्योंकि आप हर बात उससे रोक भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपने उस पर ट्रस्ट करना है, उसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस ऐसी बनानी है कि आपका बच्चा आपसे मुतासर और इंस्पायर है, यार मेरा बाप जो है ना वो अच्छा है। और अक्सर आप देखिएगा कि जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनके बाप लेट सपोज पॉलिटिकल किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी से होती है मार्केट में, अगर वो कोई बात कर दे तो रखी जाती है, तो बच्चा कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा घर में आके बाप के अगेंस्ट कोई बात करते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, मास्टर से बड़ा नेक बनता है, सीधा मस्जिद जाता है, सीधा मस्जिद से घर आता है। ये नेक लोगों की डेफिनेशन हमने रखी, मस्जिद जाएगा मस्जिद से घर आएगा, ये नेक लोगों की डेफिनेशन है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन नबूवत से पहले थे, यानी कि सादिक और अमीन कोई शख्स, मैं किसी के बारे में एक राय कायम करो यार ये शख्स सच्चा है और अमानतदार है, कैसे होगा? जब मैंने मुख्तलिफ मामलात में उसे देखा होगा, यार हर जगह सच बोलता है। जब मैंने देखा होगा 10 लोगों ने इसके पैसे रखवाए, उसने कभी भी किसी के पैसे इधर से उधर नहीं किए, तो मैं उसके बारे में राय कायम करूंगा। लेकिन एक शख्स जो मस्जिद जाता है मस्जिद से घर जाता है, यार कैसा शख्स है वो? यार पता नहीं कैसा शख्स है वो, कभी मुलाकात नहीं, बस देखा नमाज पढ़ने जाता है और घर चले जाता है। तो ये चीज जो है ना, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा देखें कि फादर को अपना रोल ऐसा बनाना है कि बच्चा रोल मॉडल बने, आप रोल मॉडल बने कि बच्चा आपको खुद ब खुद फॉलो करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं शायद इसको, और सेम विद फीमेल्स, अगर फीमेल्स हैं और आप अगर अपने आप की आप केयर नहीं, अक्सर खवातीन क्या करती हैं शादी के बाद अपनी केयर छोड़ देती हैं, वो बस डाइटिंग की, एक दफा शादी के लिए पतली हो गई और उसके बाद आपका जिस्म इतना खराब हो गया, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आपके पेरेंट्स भी खराब हो रही है, आपकी स्किन भी खराब हो रही है, आपके बाल भी खराब हो रहे हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रही। तो बच्ची, और आप देखिए टीनेज लाइफ में बच्ची को क्या पसंद होता है, यही चीज देख रही होती है, वो मॉडलिंग की तरफ जा रही होती है, मतलब पॉइंट ही वो यही चीज अडॉप्ट करी, वो उस चीज से इंस्पायर हो रही है। तो जब उसे एक अच्छा रोल मॉडल, यानी कि इस वाकयातन एक मॉडल माँ मिल जाएगी कि यार मेरी माँ मॉडल है, ठीक है, और एक हया वाली मॉडल है, तो ये अपनी केयर भी करती हैं, ये फिट भी हैं, इनकी नॉलेज भी अच्छी है, ये खाना भी अच्छा बनाती हैं, ये मुझे समझती भी हैं, मुझे किसी चीज से रोकती भी नहीं है। तो बच्ची खुद ब खुद आपसे जो है ना कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू है। लेकिन जहां आपने बॉसी एटीट्यूड रखा, नहीं बस तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, नहीं तुम इस कॉलेज नहीं जाओगी, नहीं तुम ये नहीं करोगी, तो फिर जो है ना वहां चीजें आप हाथ से लूज कर देंगे उस बच्चे इस एज में। आप कभी भी फोर्सफुली कोई चीज नहीं समझ, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप बच्चे पर ट्रस्ट करें और वो बच्चा खुद आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करे, यही ऑप्शन है। अब वो टाइम नहीं है कि आप उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करें, इससे आप बल्कि और लूज कर देंगे अपने बच्चे को। Yeah, absolutely. Jazakallah khair, Brother Saad. I think we have one more question. Um, लीडरशिप को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक ब्रदर सलीम ने पूछा है। लीडरशिप को कैसे डिफाइन करूंगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, कोटेशन भी है, लीडर इज समवन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे, कोटेशन बहुत मिलती है। लेकिन मैं आपको आसान करके समझाऊं ना, तो प्रोसेस ना समझें। फर्ज करें आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हैं और वहां पे कुछ ऐसा हो जाए कि आपको
किसी भी वजह आपने कुछ गलत ना किया, बट लेट्स सपोज फोर्सेस आपके अगेंस्ट हो जाए और वो आपको बोलेंगे चलो अब हमारे साथ जेल चलो, तो लीडर वो होगा जो खुद सबसे पहले जाके उस चीज के अंदर बैठेगा उनकी गाड़ी में। ये लीडर होगा। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि मेरी हर बात हर कोई माने। लीडर का मतलब ये, अब कोई परेशानी आ गई है तो सबसे पहले मैं इसे फेस करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे पीछे फॉलो करे। एक किस्सा मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का, कि रात के टाइम एक अजीब सी आवाज आई, सारे सहाबी बाहर निकल कर आ गए और जो है आपस में बात करने लगे कि चलो यार चल के देखते हैं कि आवाज कहाँ से आई है। और देखा थोड़ी दूर से एक घोड़े पे एक शख्स बैठ के आ रहा है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और वो घोड़े की जो सीट लगाते वो सीट के लगाए बगैर वो घोड़े को लेके चले गए थे, और वापसी आते हुए बोल रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, सब चीजें सही हैं। पॉइंट क्या है कि ये नहीं होता। जब वो हज का मौका था और जब हज करना था सारे सहाबाओं ने, और वो फिर पोस्टपोन्ड हो गया था अल्लाह की तरफ से, तो फिर क्या हुआ था, एहराम नहीं उतार रहे थे साहबा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताया था उनकी वाइफ ने कि आप पहले उतार दे एहराम। लीडरशिप का मतलब ये कि आप सिर्फ, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो ऑर्डर दे दिया वो फॉलो हो। लीडरशिप का मतलब ये है कि सबसे पहले सेक्रीफाइस आप करेंगे। सबसे पहले जो है आप, परेशानी आएगी तो वो आप पे आएगी। सबसे पहले अगर किसी को आसानी पहुंचानी है तो वो दूसरे को पहुंचाएंगे। यानी कि आप हर अच्छी चीज में आप दूसरों को पहले रखेंगे और हर बुरी चीज में अपने आप को पहले रखेंगे, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। अगर आप सिर्फ ऑर्डर चलाने के लिए लीडर हैं, तो आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं कि अपना ऑर्डर चलाते रहते हैं, बट वो अच्छे लीडर नहीं। लीडर क्या होगा कि उसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, वो नहीं बोल रहा तो मेरे लिए जान दो, लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों के साथ जो बॉन्ड क्रिएट किया, तो वो बॉन्ड ऐसे क्रिएट नहीं हुआ। उन्होंने देखा, मतलब मैं स्कूल में टीचिंग करता था, मतलब अल्लाह माफ करे, मतलब पॉइंट ये नहीं है कि मैं अपनी बातें करूं, बस मिसाल से क्या होता है कि रिलेट करना थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो आप जब स्कूलिंग लाइफ में होते हैं, जब आप टीचर होते हैं, और वहां पे जो स्टूडेंट्स है ना, वो बड़े चीजें चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है। तो अगर एक मेल टीचर वो देख रहा है कि यार ये फीमेल्स के साथ जो है ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट लूज कर जाते हैं। आप, वो रिस्पेक्ट आपकी नहीं, बच्चे, क्योंकि बच्चे भी ऑटोमेटिकली चीजें देख रहे होते हैं यार ये वो नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं कि यार आपकी एक डिसेंसी मेंटेन है, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, और आप लड़कों के साथ टाइम दे रहे हैं, लड़कों के साथ आप मजाक मस्ती भी, ब्रेक में उनके साथ आप खड़े हैं, लेकिन उसमें आप उन्हें हर चीज में बॉसी एटीट्यूड, उनके मजाक कर रहे हैं, वो आपसे मजाक कर रहे हैं। तो ऐसे टीचर के लिए, लड़के क्या होता है कि वो, उनके लिए अगर कोई उस टीचर को निकालने की बात है ना, सब स्टैंड देते नहीं, आप इस टीचर को नहीं निकालें। देखिए बॉन्ड क्रिएट होता है, फिर आप लीडर बनते हैं। तो मेरे हिसाब से लीडरशिप की, मैं जो मेरे नजदीक जो एग्जाम्पल है वो ये, हर अच्छी चीज आपके जो नीचे फॉलोअर्स हैं उनके लिए हो जाएगी, और हर बुरी चीज वो आपके लिए सबसे पहले हो जाएगी, तो आप अच्छे लीडर है। वरना आप लीडर नहीं है, आप लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं लेकिन वो लीडर नहीं है। मेरे मेरे नजदीक ये एक एग्जाम्पल है। Subhanallah. Yeah, such a such a definition which Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam example से exactly यही मिलती है। alhamdulillah, beautiful. Yes, if आप लोग please survey form भर दें, it's in the chat में, please fill in the survey form. It really helps us in you know bringing more sessions जहाँ पे भी आपको जरूरत है, और जिस एरिया में आपको any more sessions, we will arrange them for you. Please fill in the survey form. And any other questions, you can also raise your hand and ask the questions as well. So please go ahead. Yeah. You can also type in the chat as well. Yeah. Subhanallah. Yeah, I mean, one very big takeaway for me, Brother Saad, was portray your husband as a hero. Subhanallah, हम ये करते नहीं है. We don't do enough. I don't know. हमारे कल्चर में ज्यादा तारीफ, प्रेज, अप्रिसिएशन, इसको भी हम टू मच भी इट्स नॉट गुड टू डू करके वो बहाने से हम करते ही नहीं है बिल्कुल. तो सुभान दैट इज वन टेक अवे फॉर मी. आई एम श्योर एवरीवन हैज their own takeaways. Yeah, subhanallah, such an important point. I think Brother Salim has a question. Please go ahead. आप unmute करके आप अपना सवाल पूछें. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सवाल स्पीकर से नहीं है, मेरा ग्रुप से आया. दिस इज द फर्स्ट डे आई एम हियर. थैंक यू वेरी मच.
for Miss Butt. She invited me here today. I'm only interested to talk to the admin. What I have seen in the group, कि आपके admin status के नाम नहीं लिखे हुए वहाँ पे. There is no name. There is only numbers there. तो क्योंकि मैं नया आया हूँ, तो I would love to talk to the administrators one by one and try to see how I can be of some use to you. That's my question. And thank you very much, Saad. I think it was a great effort. And it's such a huge topic and scope is so big, but you tried your level best, and I wish you all the best. Thank you very much, ma'am. Jazakallah khair, Brother Salim. Inshallah, we will reach out to you. Yes. Well, Salim, please join the group, the VOTP group, and one of us will connect with you, inshallah. Yes, thank you very much. At your disposal, inshallah. Whatever I can contribute, I'll be more than happy to. Jazakallah khair, Brother Salim. Okay. All right. So please make sure you fill in the survey forms, before leaving. When would you say it's too late? It's too late. We can't make them leaders. Is it ever too late? नहीं, कभी भी टू लेट कभी भी नहीं हो सकता. चीजें चेंज हो सकती हैं, टाइम लग सकता है, बट कभी भी टू लेट कभी भी नहीं हो सकता. मतलब लेट सपोज उम्मीद हमेशा होती है, हमेशा उम्मीद होती है, लेकिन ये कि फिर आपकी सेक्रीफाइस बढ़ जाएगी, आपकी एफर्ट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन टू लेट कभी भी नहीं होता. हमेशा उम्मीद होती है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहली चीज़, सबसे अहम चीज़ यही है, एक हदीस है, मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आपको बताता हूँ. हाँ, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है. अच्छा, इसका एक दफ़ा हुआ ऐसा था कि मैं एक जैकेट अपने लिए बहुत शौक से खरीद के लेकर आया था. मेरे कज़न आया और उसने वो जैकेट देखी और उसने मुझसे जो है ना रिक्वेस्ट की कि मुझे ये जैकेट दे दे. और मेरे दिल पे बहुत बुरा फील हो रहा था मुझे कि यार मैं इतनी मेहनत से लेकर आया हूँ जैकेट, बट मेरे जहन में उसी वक्त ये वाली हदीस आई कि, तो फिर मैंने उसे जो है ना वो बोला ठीक है, तुम मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुम ले लो. तो वो टाइम को तकरीबन 10 to 12 ईयर्स हो गए, लेकिन वो कज़न आज तक मैं अगर कोई बात कर दूं ना तो वो मेरी बात मानता है. तो ये इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा फर्क होता है, हर हदीस पर आप अमल करें. तो अगर आपका कोई भी बच्चा है जो इस एज पर आ गए, तो आप उसे अगर वो चीज़ गिफ्ट करें जो उसे पसंद है, या आपकी जो सबसे कीमती चीज़ है जिसको उसे भी पता है कि यार ये इनकी सबसे कीमती चीज़ है, आप उसे वो देना, तो वो फिर जो है ना उसका एक, वो बोलता है कि यार वाकईतन यार इन्होंने तो मेरे लिए वो सारी चीज़ कुर्बान कर दी. मतलब तो इसकी बरकत भी आती है, और आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं कि आप अपने बच्चे को दीन की तरफ लेके आने के लिए कुर्बानी दे रहे, तो फिर मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे. Yeah. We have one more question from Sister Azra. If the father is not a good person, like if he has bad habits, then in such a situation, how would you, mentor your kids to be leaders? ओके, अगर तो इस तरह का है कि बाप के अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, और लेट सपोज के माँ जो है वो अच्छी है. मैं इनके क्वेश्चन को ना थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा. ये एक मदर के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं या ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं, ये इससे थोड़ा सा बेहतर वो पता चल सकेगा. Mrs. Azra, आप टाइप करें. I mean, are you asking with respect to the kids or with respect to the spouse, how to deal with the situation? Azra, आप yeah. Okay, she said from a like Islamic perspective. So you answered from a perspective of how to, a mom is there and she wants to raise her kids to be leaders, but she doesn't have the support of a father who is either of the Islamic perspective or who has the right habits. In fact, he's probably more of a negative role model. इस केस में mom क्या करे अपने बच्चों, she still wants her kids to be good. देखिए, इसमें अब मैं मतलब बेसिकली मैं सवाल पूछूं तो उसके एक सवाल और भी बनता है कि किस स्टेज पे ये मसला है. लेट सपोज कि अभी न्यूली शादी हुई है
और जो है लेट सपोज न्यूली शादी है, पता चला कि भाई हस्बैंड की आदत जो है अच्छी नहीं है, लेट सपोज वेरिएबल ही नहीं है, इस्लामिकली भी मतलब बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है, तो और काफी आपने कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप कोशिश करें कि प्यार से चीजों को करने की कोशिश करें चेंज। मैं समझता हूँ कि खवातीन के अंदर अल्लाह ने पावर रखी है कि मर्द को वो चेंज कर सकती हैं। खवातीन मिस्टेक कहाँ पे करती हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अगर ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, एक कुलीग से इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो कुलीग आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, वो सिर्फ काम का एक दोस्त है जिससे काम की बात होती है, दैट्स इट। अगर हमारा आजकल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में क्या है, जैसे हस्बैंड है, यार वो पानी नहीं आ रहा, यार बिजली चली गई, यार ये खत्म हो गया, यार ये मसला आ गया, आज इसने ये बोल दिया, आज उसने वो कर दिया। अब हस्बैंड रोजाना जब घर आ रहा है उसे यही इश्यूज मिल रहे हैं। मतलब वो जो एक दोस्त के दोस्त से बात होती है, यार तुमने क्या किया आज, अच्छा तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा ये वाली चीज खत्म हो गई। यही मर्द जो अपने दोस्त के साथ घंटों बातें कर रहा है, ये अपनी बीवी के सामने आके चुप हो रहा है। उसकी वजह ये कि वो जब भी बोलती है इश्यूज के अलावा कोई बात ही नहीं होती। ठीक है। तो क्या होता है कि फिर मर्द ना ऐसे खवातीन से साइड होना स्टार्ट होते हैं, फिर वो बस काम की बात होती है, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता। मैं अक्सर लोगों को ये मैंने एक सजेशन दी है कि अगर आपकी शादी को टाइम हो गया, बच्चे भी हैं, बट स्टिल आपका हस्बैंड और वाइफ का एक टाइम होना चाहिए कि जिसमें आप दोनों अकेले जाएं, बच्चे छोटे हो बड़े हो, आप साइड पे उन्हें कहीं पे लगवाएं, आप जाएं एक दिन अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अगर आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चों की जो है वो तरबियत उस तरह से हो नहीं सकती। आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये इशू आया कि आपने कोशिश की और हस्बैंड ने फिर भी, आपने बहुत अटेम्प्ट कर लिया, हस्बैंड फिर भी जो है ना नहीं चेंज हुआ, और लेट सपोज वो ड्रिंकिंग की तरफ है, ठीक है, और वो दूसरी चीजों की तरफ है, तो फिर इट्स बेटर टू मूव ऑन। मतलब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ये स्टेज, इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आपको। बेहतर है कि आप अगर एक जनरेशन इनसे हो, इससे बेहतर है कि आप जो है मूव ऑन करें आगे, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये मैं आपको बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। हमारे सोसाइटी में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता है, ये एक मसला है हमारी सोसाइटी का। अगर कोई खातून इस तरह से कोई डिसीजन लेने का सोच लें तो लोग उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, और फिर माशरे में हमारे यहाँ यही होता है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती। बट पॉइंट, ये सोल्यूशन बेहतर यही है कि क्योंकि एक रेफरेंस के लिए एक सहाबी थी, और जो है उनकी शादी हुई एक सहाबा से, तो उसके बाद वो नेक्स्ट डे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई और बोला कि या रसूल सल्लम, मैंने सोचा था कि मुझे समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मफहूम बता रहा हूँ। मतलब बहुत बोला कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे नहीं रहना। तो आप उन्होंने साहबी को बुलाया कि बोला भाई आप जो है ना इनसे अलग इख्तियार करें, तो उन्होंने अलग। पॉइंट ये कि वहाँ फीमेल्स के राइट थे, फीमेल्स की सुनी जाती थी। हमारे यहाँ पे बस शादी हो गई ना, बस अब बेटा तुमने मर के ही आना है वहां से। ये हिंदुओं का कल्चर हमारे साथ आ गया, तो ये है। लेकिन आपने ये मशवरा करना है अपने किसी भाई से, या फिर जो है किसी मर्द से, औरत से मशवरा नहीं करना है इस तरह का, क्योंकि अमूमन फीमेल्स इस चीज में अच्छा डिसीजन नहीं देती, वो सजेशन नहीं देती, वो अजीब फसादी सा डिसीजन देती है और सजेशन देती है। तो हमें अवॉइड करना है, मर्द और भाई को इन्वॉल्व करें, वो बेहतर डिसाइड करके बताएंगे। सेकेंडली आपने देखा कि अच्छा चले, अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि अब आपकी औलाद भी होगी, औलाद बड़ी भी होगी, अब बाप के अंदर जो है ना चीजें आ रही हैं। देखिए आपकी, सही है, अब बच्चा अगर 17 साल का हो गया है, देखें अब पॉइंट यह है कि अब आपका जो शौहर है, मैं आपको बताऊं, इट्स नेवर टू लेट। आपका शौहर भी चेंज हो सकता है, लेट सपोज वो ड्रिंकिंग भी करता है और अब आपने बच्चे भी हो गए, ज़ाहिर है अब अलहदगी इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके बच्चे साथ हैं, वो पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपका काम होना चाहिए, आप अपने आप से सवाल करें, इसका जवाब समझ ना आते, क्या आप रातों में उठ के तहज्जुद में अपने शौहर की चेंज होने की दुआ मांगती हैं? क्या आपने दुआ मांगी है? पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपकी फिक्र होगी कि यार अब मुझे अपने शौहर को, क्योंकि देखिए कोई भी शख्स बुरा हो लेकिन इतना बुरा नहीं हो सकता है वो जहन्नुम में जाके चले। तो अब आपकी फिक्र होनी चाहिए कि यार नहीं, मुझे अपने शौहर को चेंज करना है, भले ही वो जो भी है मैं चेंज करूंगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्योंकि अल्लाह के मामला है, इनकी चीजें अलग चलती हैं। जब आप कोई चीज अच्छी नीयत के साथ, इखलास के साथ करते हैं ना, तो अल्लाह की मदद कंफर्म आती है। वो बड़े बड़े लोग चेंज होते मैंने देखे हैं, होते हैं। आप दुआ करें और फिर जाके आप उन पर वर्किंग करें, अल्लाह बंदों को चेंज कर देता बहुत आसानी से, सब चेंज हो जाते हैं।
आपने बस दुआ करनी है और आपने एफर्ट्स करनी है। आपने दुआ की, नेक्स्ट से जाके उनसे बात की अपने शौहर से, देखें अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप चेंज करें थोड़ा सा, देखें क्योंकि अगर आपने भी, देखें ये बच्चे आपसे सीखेंगे, फिर आपके गुनाह जारिया बनेंगे। आप जो बुरे काम करते कर वो ये भी करने, देखिए हमारे हम सब के अंदर बुरी आदतें होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जो बुरी आदत है अगर मैं अपने बच्चों के अंदर आने दे रहा हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ। मतलब पॉइंट ये कि भाई अगर मैंने एक, मेरी लेट सपोज मेरी स्मोकिंग की आदत लग गई, तो मैं अपने बच्चे को भी इसलिए स्मोकिंग करने दूं कि मैं भी करता हूं, तो ये बेवकूफी है। मैं उससे पहले ही मतलब वार्न कर दूंगा, बेटा इस तरफ जाओगे ना तुम स्मोकिंग की तरफ चले जाओगे, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे ये नुकसान हो रहा है, मुझे ये नुकसान हो रहा है, मुझे ये नुकसान हो रहा है। तो आप दुआ करें, उनसे बात करें, इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला उन्हें चेंज कर देंगे। एक चीज ये हो गई। और आप सेम, अब आपको डबल ड्यूटी आ गई, अब आपने मर्द का भी रोल प्ले करना है और आपने फीमेल का रोल भी प्ले करना है। आप बच्चों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करेंगे, अब आप बच्चों के साथ खेलेंगे, अब आपने बेटे के साथ भी खेलना पड़ेगा। और आप बेटे से पूछेंगे अच्छा क्या चल रहा है तुम्हारे, कौन सा दोस्त है, क्या कर रहे हो, तुम जिम क्यों नहीं जा रहे, तुम जिम जाओ, 17 साल के हो गए, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, मर्दों को स्ट्रांग होना चाहिए, तुम जाओ जिम, किक बॉक्सिंग सीखो। मतलब पॉइंट ये, आप उसके इंटरेस्ट की बातें करें ताकि बच्चे का बॉन्ड आपसे स्ट्रांग हो। टेम्परेरी जब तक आपके जो भी है, लेट सपोज मेल अभी वो सही नहीं है, तो वो जब तक बेहतर ना हो जाए आप उनके साथ चीजें बेहतर करें। बट मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप दुआ करें और आप फिर उसके बाद एफर्ट्स करें तो अल्लाह ताला लोगों को बदल देता है। हम लोग दुआ, और मेरी कल बात हो रही थी एक दोस्त से, तो हम बोलते कि मेरे दिल में है, अल्लाह को पता है। भाई अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन अल्लाह ने फिर दुआ का कॉन्सेप्ट ही क्यों दिया? अल्लाह ताला ने बोला कि तुम ये करोगे, यानी कि चाबी यही है, दुआ। और दुआ, ये सवाल आप रात में नमाज में अल्लाह के सामने किया, अल्लाह देखिए मैं चाह रही हूँ मेरे बच्चे ऐसे हो, मैं खुद ऐसी हूँ, मेरे शौहर ऐसे हैं, अब आप बताएं मैं क्या करूं। आप इस तरह लिटरली अल्लाह से बात करें मुसल्ले पे बैठ के 2 नफिल पढ़ के। मैं आपको बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर आपको चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बड़ी बात करता हूँ कि आपको चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये ट्राई करके जरूर देखें। Jazakallah khairan, Brother Saad. Or please fill in the survey forms, before dropping off. Inshallah. And Allah subhanahu wa ta'ala help us to raise kids and righteous Muslim leaders, inshallah. Okay. All right, inshallah. Then I will go ahead and go and close. So, Safaita, anything else you want to add on? No, I think we are all done. It was a very informative session. I think, and may, Brother Saad, if you could cover one point. We raise our daughters as submissive people who listen to orders and obey. So what is the leadership connection with that? What are we doing? Are we doing that right, or what should we be doing? But most of the girls are in that role that they have to listen and obey and be very obedient. बेसिकली पॉइंट आपका सवाल है, वैसे दोबारा रिपीट, तो आप बेसिकली कह रहे हैं अक्सर हमारी खवातीन को बोला जाता है कि बेटा शौहर जो भी बोले ना सुन लेना, बस सुन लेना, ओबे करना, मानना, कोई अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं यूज करना. This kind of thing is being raised in our. प्रैक्टिकल एक लाइव अभी सिनेरियो हुआ, मैं वो शेयर करता हूँ। एक फीमेल थी, वो कुछ चीजों पे मशवरा करती थी, तो मैं उन्हें मशवरा देता था। उनके घर के खानदान के मामला ऐसे थे, और मैं उन्हें ये समझाता, देखें आप अगर अल्लाह की नाफरमानी आप कर रही है ना, तो जो है ना आप चल नहीं सकता रिलेशन, अल्लाह की नाफरमानी के साथ चीजें चल नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो वो बट स्टिल वो वही हस्बैंड की बात मानना, लोगों की बात मानना, किसी भी तरह थोड़ा भी चीजें दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कोई मसला उनके मामले में कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो करती रही। आज वो अकेली बैठी हुई है। मतलब आप कभी भी विन विन सिचुएशन पे नहीं आ सकते अल्लाह को साइड पे करके, ठीक है? क्योंकि जब वही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपने जब आप हम अल्लाह को भुला देंगे तो अल्लाह हमें खुद में भुला देंगे, तो ये हो नहीं सकता। आपने बिल्कुल बताना है कि भाई आपका शौहर अगर आपको बोले तो आपने मानना है, लेकिन मानने की बाउंड्री है। अगर ये बात, शौहर की बात कुरान और हदीस के अगेंस्ट जा रही है, तो आपने बात करनी है रिस्पेक्टेबल वे में कि भाई ये देखिए ये चीज है, अब आप मुझे बताएं, आप जो बात कर रहे हैं कुरान ये कह रहे हैं, अब आप बताएं मैं क्या करूं।
आप बिल्कुल बात करें क्लियर कट कि भाई कुरान मुझे ये कह रहा है, आप मुझे ये कह रहे हैं, मैं कैसे करूं। लेट सपोज कोई हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई पर्दा ना करो तुम, और जो है पहले तो देखिए ऐसी जगह शादी हो नहीं चाहिए, लेट सपोज हो गई शादी, आप अब उन सिंपल उनसे बात करें, ये डर हटा दे कि यार मेरा रिश्ता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ आपका रिश्ता नहीं चलना तो वो वैसे ही नहीं चलेगा। आप बिला जब अपनी आखिरत क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। आप बोलें कि भाई देखिए कुरान मुझे ये कह रहा है, हदीस मुझे ये कह रही है, तो मैं आपकी बात कैसे सुन सकती हूँ। आपसे मुझे बस तमीज से बहस नहीं करनी, हमने उन्हें जलील नहीं करना है कि सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि मतलब उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि नहीं तुम लोग जो हो, तुम लोग बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनते हो या तुम इस तरह की काफिरों वाली हरकत हो, हमें ये नहीं कहना। हमें सिर्फ बोले कि कुरान और हदीस ये कह रही है, तो अब आप बताएं कि मैं कैसे इसको फॉलो करूं। तो मेरे ख्याल में ये, और इस चीज को जहन से निकाल दें कि मेरा रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। रिश्ता नहीं चलना तो वो नहीं चलेगा। आप अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज ना करें, बस ये मेरी टिप है। इंशाल्लाह आप इसको जहन में रख के जो भी काम करेंगे, जो शख्स भी, इंशाल्लाह वो नुकसान नहीं उठाएगा। Yes, yes. Yeah, absolutely. And yeah, may Allah subhanahu wa ta'ala, make us women as well bold enough and courageous enough to speak up for the truth and speak up for the haqq, which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran and the Sunnah. Inshallah. Jazakallah khairan. Okay. Inshallah. We'll go ahead and go on close. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam wa rahmatullah. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।